Good morning, ladies and gentlemen. My name is Hassan Wine, and this is our 5th live session on Facebook. Our guest for today is Mr. Mashood Ahmed. He has been with TKS for the last 4 years, doing many various things. There are some people who are polymaths. There are some people who are polymaths by nature, and Mr. Mashood Ahmed is one of them. But currently, he is with TKS as the Quality Improvement and Support Manager. So a lot of you have probably, a lot of the TKS campuses have probably met him on and off over the years. You're probably very familiar with him. And you know that his domain is mostly quality assurance. And that is also going to be the topic for today. We're going to be talking about quality assurance in educational institutions, how it works, and how quality assurance improves practices in educational institutions. So, Mr. Mashood, can you, good morning, can you give us a brief description of your role at TKS? Well, please, my name is Mashood Ahmed, and as I see that Mr. Hassan has introduced me, I've been attached with this organization for the last 4 years, and basically you see that I have assumed so many roles. लेकिन आजकल जो है बेसिकली मैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी एश्योरेंस पे काम कर रहा हूँ और उसमें जो है वो वी हैव विजिटेड सो मेनी स्कूल्स, काफ़ी स्कूल्स हमने विजिट किए हैं और कॉलेजेस से भी ILM कॉलेजेस पे हम विजिट कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि वी ऑल सी दैट वी कंसीडर दिस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस स्कूल सिस्टम. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो आइडिया बिहाइंड ये है कि बेसिकली जो भी पेरेंट्स हमारे पास स्कूल में आए तो वो फिर उनको सारे स्कूल में एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसा जो है लुक मिले, एक जैसा माहौल मिले. तो ये है, that's the basic idea. The idea being the services, because by their very nature are intangible and they have a tendency to be different from one point to the other because services involve people. So the idea behind quality assurance is to ensure a homogeneity between campuses and between education institutions. Exactly, conformity you have, so सब है parents conformity सब exactly. तो आपने कहा, you said quality assurance is a major function and it's a very important function. So can you tell our viewers exactly what quality assurance is and sure. Basically quality assurance की जब आप बात करते हैं तो that is part of quality management. तो उसमें जो है total quality management या quality improvement इसमें बहुत सारे उसके factors हैं. उसमें एक quality assurance भी है in which we have to make sure that all the quality measures are taken and they are fulfilled. So we have like list of areas that we evaluate in every school. तो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि उसमें एकेडमिक्स भी है, उसमें स्कूल बिल्डिंग भी है और उसमें जो है स्टाफ, फैकल्टी वगैरह सब चीज़ें हैं. तो ये है उसको बेसिकली हमने वी हैव टू मेक श्योर कि सब में क्वालिटी जो है वो एक जैसी हो और दिस इज और सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हों और ताकि कंफॉर्मिटी हो. जी सर. ठीक है. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? Like, what's the importance of this conformity? Why is it necessary that this conformity exists? देखिए बेसिकली जो है वो अब कहते हैं कि वी जस्ट वांटेड टू मेक आवर स्कूल अ प्लेस वेयर बेटर नेवर स्टॉप्स बेस्ट नेवर स्टॉप गेटिंग बेटर. यानी जो बेस्ट सिस्टम है उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश होती है. तो इसलिए जो है हम ये देखते हैं कि वी हैव टीम ऑफ लाइक द पीपल. हमारी टीम में जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं और इसके बाद यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और वो जो है वो दे हैव द लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हम देखते हैं कि हमारे स्कूल के साथ बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो लेवल पे आए हर मामले में, एकेडमिक्स में भी आए और इस जो है फ्रंट ऑफिस में भी, स्कूल बिल्डिंग्स में भी, टीचर्स में भी. तो ये सब चीज़ें फिर हम वी हैव टू मेक श्योर कि वो उस क्वालिटी पे है. लाइक जैसे अब ISO 9000 या उसमें बेतहाशा, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है वो. तो उसमें हम देखते हैं कि उस स्टैंडर्ड तो बहुत इम्प्रूव होते जा रहे हैं लेकिन हमने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. उस मुताबिक हमने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है और उस पर फिर हम तो चेक करते हैं, फिर जाके उनसे पूछते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सब चीज़ें. और इसका आइडिया बिहाइंड दिस ये है कि एक तो सारे स्कूल जो है हमारे
जो है ये एक ही जो है नहज पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं, तो और उनका जो whatever the services they are providing, the parents जो like सी दैट उसमें ये भी है कि अगर एक पेरेंट जो है कहीं मूव दूसरे शहर में कर जाता है तो हमारे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हैं, तो वहाँ जाके उनको जो है वो ऑड फील ना हो, दे मस्ट सी के ऑल द सर्विसेज आर सेम। तो इसलिए हम जो क्वालिटी वी हैव टू मेंटेन ऑल दिस quality measures, we have to make sure that the quality is being maintained and fulfilled, और ताकि जो है वो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay. It's like we're trying to we're trying to be the McDonald's of education. We're trying to be the same no matter where you go. Exactly. So what are the you've been on many visits, Right. And for quality assurance. So what are the most common problems that you've come across during these visits? Well, you see that like we see first of all the books we have you see made books for like preschool to grade 5, I think, yes, grade 5 उसकी बुक्स हैं हमारे पास, और वो भी हमने सब जो है उनको यही है कि सेम जो है सिलेबस जो है बीइंग फॉलोड। और ये इंटरनेशनल स्कूल्स में भी देखा गया है कि जो सिलेबस फॉलो किया जाता है वो फिर उनके हेड ऑफिस से ही आता है। तो हेड ऑफिस ने इतनी मेहनत के साथ और दे हैव एक्सपर्टीज, हर किस्म के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो उनके लिए जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल्दो सी दैट गवर्नमेंट रिसेंटली जो है उनको जो चेंजेस आ रही हैं, जो कोविड की सिचुएशन हम सबके सामने है, उसमें जो सिलेबस का जो है वो ALP भी सिलेबस आया, सिंगल नेशनल करिकुलम का भी सिलसिला चल रहा है। तो लेकिन ये है कि उसमें बेसिकली जो है वो देयर इज नीड, और हमने वो खैर बहुत कई सालों से हम ये कर रहे हैं कि वो बुक्स हमारी हैं और वो जो है, लेकिन वो स्कूल अक्सर फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको, और वो समझते हैं कि शायद बुक्स अपनी कोई लगा दें तो उसमें फिर वो चीज़ पैदा नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि आप जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि हमारा एक ये SMS उसको कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जी, वो है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फिर भी जो है स्कूल पता नहीं क्यों रिलेक्टेड है या शायद उनके पास कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इससे सब चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज उसके अंदर हैं जो है, और उस जो भी लेक्चर्स यहाँ से बने हैं वो सब उसके ऊपर अपलोड हैं, ट्रेनिंग्स लोडेड हैं, सब चीज़ें हैं, और फिर अभी तक जो है वो स्कूल जो है वो उसको जो है अडेप्ट नहीं कर पाए अभी तक। तो खैर वी आर वर्किंग वेरी ऑन इट, वी हैव स्पेशलाइज्ड। तो why do you think that is कि वो क्यों नहीं अडेप्ट कर पाए? जी, एक स्कूल में आई वोंट मेंशन द नेम, उन्होंने था कि जी वो जो टॉप मैन या NWA है उनका ख्याल था कि जी मुझे क्योंकि कंप्यूटर आता नहीं है, तो मैंने कहा तो हायर अ पर्सन, एक बंदा रख रहे हैं या हम खुद बता दें, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, आसान काम है। उसमें जो है जब आप उस सिस्टम को जाएंगे और सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो उसमें सब एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जो है वो बजाय इससे कि आप एक जो है इतनी ज़बरदस्त सहूलत से महरूम हो जाएं, तो इट्स बेटर दैट यू शुड गो फॉर इट। ये थोड़ा सा ये भी मतलब एक फैक्टर है कुछ। और दूसरे शायद वो कुछ लोग ये समझते हैं कि दैट जो बहुत कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हेड ऑफिस से जो भी सपोर्ट जो जा रही है वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो है वो। लेकिन ये है कि हाँ एक और प्रॉब्लम जो है वो थी कि जब हम टीचर से मिलते हैं ना, टीचर से मिले जाके, तो वो फिर उनको भी नहीं पता होता कि हेड ऑफिस हमें क्या क्या सपोर्ट आ रही है, वो उनका और जो NWA या प्रिंसिपल्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली, और वो दैट शुड बी रिमूव। वो हम जाके खैर रिमूव तो करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो वो टीचर्स हमें कहते हैं हम ये चाहिए, हम कहते हैं ये तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं आपको, दिस इज प्रोवाइडेड, और ये सॉफ्टवेयर में आए और एवरीथिंग विल बी देयर, और आपको लेक्चर्स भी हैं उसके अंदर और ट्रेनिंग्स भी हैं, सब कुछ है। So ये main problem. So we had this session on the school management system the week before last. I don't know if you saw it on Facebook or not. But we discussed there. We had questions during that session, and then we had questions again during our session with Jennifer. And some teachers and some network associates are saying that the reason the SMS isn't used as much is because parents are reluctant to use it. So they're either reluctant to use it because they fear the technology, which isn't very it's not very unnatural. Technology can be scary, change can be scary. So they're reluctant to use it, and in a lot of places, in a lot of regions,
they don't exactly have the internet infrastructure to support continuous use of the school management system. So in that case, तो उस पे obviously impact तो आएगा quality पे. So in that case, what would you recommend? Well, sir, I say that basically जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ठीक है कि हर जगह नेट की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो the gadget that we have, what we call it mobile, ये हर एक के पास मौजूद है. यानी कि वो आप you'll be surprised to know कि मैं जो है वो I was just passing through the street और एक मतलब वो जो खाना बदोश बच्चे होते हैं ना, उनमें से एक बच्चा कहता है जी हमारे चाचू ने ये जो है वो ले लिया. मतलब इवन उस लेवल तक वो पहुंच गया मोबाइल. तो ये मोबाइल जब पहुंच गया तो इसका मतलब तो आपके पास वो तो है, वो डेफिनेटली व्हाट्सएप भी आपके पास आ जाता है, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आ जाता है, व्हाट्सएप के बगैर तो नहीं चलता. व्हाट्सएप आपके पास आ गया तो मीन्स जो आप जो है वो कनेक्टेड हो गए. ये है कि स्कूल जो है वो थोड़ा सा गाइड करे, एजुकेट करे पेरेंट्स को. पेरेंट्स दे नीड टू बी एजुकेटेड. ये हम जब जाते हैं तो उनको बताते हैं कि आप जो है वो पेरेंट्स के साथ सेशन जरूर रखें, उनको सबको इकट्ठा करें, कुछ हल्का फुल्का चाय पानी उनके साथ कर लें और उनको जो है बताएं कि ये जो है ये कितना अहम चीज़ है और ये और उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस वो दे हैव टू बी कनेक्टेड विद जैसे मोबाइल से ही व्हाट्सएप से या कोई नियर बाय जो भी है प्लेस. आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो ये है वो नेट कैफे वगैरह हर जगह होते हैं. गाँव में मैं देखा है, विजिटेड सो मेनी विलेजेस, तो उसमें जो है वो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है. तो ये जो है ये लेम एक्सक्यूज है कि भी अपना ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है. हाँ ये है, अगर आप करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता. सो दैट ये आई डोंट थिंक सो. बल्कि मेरी जो है वो ये हमारे जो आईटी के जो सीनियर हैं उनसे भी बात हुई थी, तो वो वही ये बता रहे थे कि अब तो इंटरनेट तो हर जगह ही पहुंच गया है और वो मतलब इसको कोई लेम एक्सक्यूज नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ देयर इज नीड टू ट्रेन द पेरेंट्स. ठीक है जी सर. Mrs. Noor is asking. I just want to respond to her comments. Mrs. Noor, we'll address these issues or these points that you're asking or talking about after the session. Right now, we're just going to be talking about general queries as opposed to things that you require from the head office as part of our operations. This is just mostly an informal session, so we'll address your comments after the session, if that's okay. So back to the session. I want to ask if there are any preventive measures, like if there's anything that educational institutions can do to prevent these problems that you've mentioned from arising. If there's anything that they can do to maybe not have to warrant a visit from a quality assurance team, even though quality assurance visit is necessary. It's part of our practice. But is there anything that educational institutions can do themselves to ensure that their quality is good without having to rely on a quality assurance specialist? Right. इसमें जो है बेसिकली उनको जो हम जब विजिट पे जाते हैं तो उसका एक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि उसमें जो है वो क्लासरूम में हम जाते हैं, क्लास टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं. क्लास टीचर्स को ऑब्जर्व करने के बाद फिर जो है उनके साथ बाद में एक सेशन होता है, वहीं पे मतलब उसके बाद हमने रिपोर्ट एक भेजनी होती है, वो तो बाद में हफ्ता 10 दिन बाद भेजते हैं हम. लेकिन उसी वक्त जो है उनको फीडबैक जो है NWA को भी उसको बताते हैं कि क्या किस्सा जो है ये आपका. उसमें जो है ट्रेनिंग देखें, एक जो है वो ट्रेनिंग 3 किस्म की हम प्रोवाइड करते हैं. तो 2 किस्म की है. एक है जिसको हम क्लस्टर ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है. दूसरा है नीड बेस्ड ट्रेनिंग. तो नीड बेस्ड ट्रेनिंग और क्लस्टर ट्रेनिंग जो है दे आर आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. जब जो है वो क्लस्टर तो हमने खुद डिज़ाइन करनी होती है और नीड बेस्ड ट्रेनिंग जब जैसे ही जो है वो कोई भी स्कूल हमें क्वेरी भेजता है तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं और फिर अपना स्टाफ यहाँ पूरी टीम है वो भेजते हैं. और दूसरी है कि वो हम उनको गाइड करते हैं इन हाउस ट्रेनिंग के लिए और व्हाट वी कॉल प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप. उनको बताते हैं कि हाउ कैन यू ग्रूम योरसेल्फ, आप खुद किस तरह ग्रूम कर सकते हैं और विदाउट द हेल्प ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस को माइनस के साथ भी आप देखें इस फैक्ट जो है कुछ स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं हमारे और कुछ स्कूल जो है वो थोड़ा कुछ डाउन जा रहे हैं. अब वो जो है वो क्या फ़र्क है बेसिकली, हेड ऑफिस प्रोवाइडिंग द सेम थिंग टू एवरीबॉडी. तो उसमें ये है बेसिकली चीज़ की है कि वो उनकी इन हाउस ट्रेनिंग और या प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप वो खुद को ग्रो कर सकते हैं. और उसके लिए जो है मैं जो है अक्सर सजेस्ट किया करता हूँ
क्योंकि एक तो ये है कि वो ऑब्जर्वेशन, एक तो जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसका डायरेक्टर या NWO जो है आता है या प्रिंसिपल क्लास में आ जाती है, उस टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनसे डिस्कस करती है हाउ टू इम्प्रूव। एक होता है पीयर जो है ऑब्जर्वेशन, कि आपको उनका कोई कोलीग जो है वो बैठ जाए, उससे थोड़ा सा फ्रैंकनेस होती है, उससे ज़्यादा पता लग जाता है वो। और तीसरी चीज़ जो है वो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में ये है कि आप जो है जो वट एवर द लेक्चर यू डिलीवरिंग उसको रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, तो वो इजीली मोबाइल से भी हो सकता है, और फिर उसको आप दोबारा सुने। तो ये लेटेस्ट जो है आजकल ये है कि फिर आप अपनी गलतियाँ खुद निकालें, क्योंकि इसमें क्या जो है वर्ड आप बोल सकते थे या नहीं बोला, या कौन सा जो है वो और बेहतर तरीके से आप उसको बात को कर सकते थे। तो ये दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इंटरनली जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है। स्टाफ जो है खुद को एक्सेंट को जो इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जो है जो रिमोट एरियाज में स्कूल है हमारे, उसमें जो है बच्चे जो है वो देहातों से अक्सर आए होते हैं, तो उनके एक्सेंट जो है वो ठीक नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए भी जो है वो पहले तो टीचर्स का अपना एक्सेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। दूसरा ये कि फिर उसके बाद जो है वो मैंने उनको वो डिवाइस एंड वेज एंड मीन्स के भी किस तरह आपने अपने एक्सेंट को, फिर बच्चों के एक्सेंट को भी, भले सिर्फ लैंग्वेजेस के टीचर का काम नहीं है, बल्कि ये सारे टीचर्स का काम है। जो भी सब कुछ मैथ पढ़ा रहा है उसमें भी अगर कोई टर्म आ रही है तो उसका एक्सेंट सही होना चाहिए। ये सब जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, उर्दू, ये सब जो है वो उर्दू के भी एक्सेंट जो है होने चाहिए। तो ये इस पे काम करना चाहिए। इसका हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग स्किल्स जो है, और फिर टीचिंग स्किल्स है। तो टॉपिक बताते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट है। अभी छोटा स्कूल है उसमें तो मैं जो है वो डिसिप्लिन का इशू तो होता ही नहीं है। बड़े स्कूल में डिसिप्लिन के इशू हो सकते हैं जब क्लास बड़ी होती है। उसके लिए फिर अलग जो है हम उनको डिफरेंट स्टाइल में गाइड करते हैं कि हाउ टू हैंडल द क्लास, या क्लासरूम डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन करना है, और सीटिंग प्लान किस तरह करना है, प्लेसमेंट किस तरह करनी है बच्चों की, एंड द थिंग्स लाइक दैट। Okay. Well, I think, I think we spent quite a fair bit of time on this topic, and I think that our viewers kind of get the gist now of what quality assurance is and what they can do to basically avoid a lot of problems that quality assurance specialists point out when they visit campuses. So with that, thank you, Mr. Mashoud, for joining us. Thank you for giving us your time. We are going to end the session here. And before I go, I'm going to request viewers to once again please like and follow our page and share the session. You can always watch it again on our Facebook page after the fact. With that, thank you very much and have a good day. Thank you everybody. Thank you.